यहाँ पर जो पायरुवेट बना है दैट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो साइटोप्लाज्म के अंदर बना है। जो पायरुवेट एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस है साइटोप्लाज्म के अंदर जो बना है, वो अब एरोबिक रेस्पिरेशन का जब हम लोग बात करेंगे एरोबिक का, तो वहाँ पर जो पायरुवेट बनता है हमारा ग्लूकोज से। ये पायरुवेट है CH3CO COOH। इसका जो दो मॉलिक्यूल बना है, जो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस है साइटोप्लाज्म में है, इट्स ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्रूशियल इवेंट जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है उसमें पहला दो इवेंट है यहाँ पे बहुत क्रूशियल। पहला है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम leaving three molecules of CO2 in the mitochondrial matrix, right? Leaving three CO2 molecules in the mitochondrial matrix. तो mitochondrial matrix में ऐसा हो रहा है। एंड दूसरा, the passing on of the electrons removed as a part of the hydrogen atom to molecular oxygen with simultaneous ATP formation in the inner membrane of mitochondria। तो यही अपन बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो टू क्रूशियल इवेंट जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, उसमें जो पहला इवेंट है वो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन एक बार में होता है या स्टेप वाइज होता है? स्टेप वाइज होता है। ये स्टेप वाइज रिमूवल है सारे हाइड्रोजन एटम का, लिविंग थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये सब हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और दूसरा, पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज ए पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम to the molecular oxygen with the simultaneous ATP formation in the inner mitochondrial membrane. These are the two crucial events that is happening in aerobic respiration, right? Then you have link reaction. So what is happening here is, in link reaction, the link reaction occurs in the mitochondrial matrix, right? Link reaction occurs in mitochondrial matrix wherein the pyruvate undergoes oxidative decarboxylation। मतलब there is oxidation of pyruvate as well as there is CO2 removal, right? This CO2 removal is also occurring in the mitochondrial matrix. As we are aware that glycolysis is occurring in cytoplasm, link reaction occurs in the mitochondrial matrix, and Krebs cycle is also occurring in mitochondrial matrix. So pyruvate undergoes oxidative decarboxylation by a set of complex reaction which is catalyzed by pyruvate dehydrogenase enzyme and requires participation of coenzyme like NAD plus and coenzyme A. So what is happening here is you have three carbon compound called as pyruvic acid, है ना? Pyruvic acid, and there is enzyme called pyruvate dehydrogenase, and you have Mg2 plus ion that is facilitating this enzyme pyruvate dehydrogenase, which converts this pyruvic acid into a two carbon compound called acetyl coenzyme A. There is release of CO2, so this process is called oxidation and decarboxylation, so called as oxidative decarboxylation of pyruvic acid into acetyl coenzyme A. And since this is oxidation, so NAD plus is converted into NADH plus H plus, right? So this is again a oxidative process, and coenzyme A is also a cofactor. Now you see that this acetyl coenzyme A, which is a two carbon compound, enters the TCA cycle, also called as Krebs cycle, or which is discovered by Hans Krebs, right? So this is Krebs cycle. Now the pyruvate, that is three carbon compound, undergoes this process called oxidative decarboxylation. Decarboxylation, right? There is coenzyme A and NAD plus that is required, and you have Mg2 plus also, which is converting it into acetyl coenzyme A with release of CO2. And then this acetyl coenzyme A combines with oxaloacetic acid, forming a 6 carbon compound called citric acid. Then in this cycle you see and then in this cycle
फिर इस साइकिल में सबसे पहले आता है एसिटाइल को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में 1 ग्लूकोज से बना है, तो हमको 2 साइकिल चलाना होगा टीसीए साइकिल का। तो 4 + 2 बनेगा एक 6 कार्बन कंपाउंड जो है साइट्रिक एसिड। उसके बाद बनेगा अल्फा केजीए जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड होगा। उसके बाद बनेगा ससिनाइल कोएंजाइम है जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड होगा। फिर बनेगा ससिनिक एसिड जो कि अगेन 4 कार्बन का कंपाउंड होगा। फिर बनता है फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और यहाँ बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब इस पूरे साइकिल में जो सबसे पहले बनता है हमारे पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो कंबाइन करता है एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है और 2 कार्बन कंपाउंड, ये बना देता है 6 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद बनता है अल्फा केजीए जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे 3 बार लगातार CO2 रिलीज होगा और NADH+H+ बनेगा। और इसका बनना जो है ये एक टाइप का क्या है, इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि पूरा प्रोसेस एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और NADH+H+ बन रहा है। यहाँ पे भी NADH+H+ बन रहा है और जो हमारा लिंक रिएक्शन हुआ था वहाँ पे भी NADH+H+ बना था। तो 2 बार ये होगा साइमल्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन वाला रिएक्शन। उसके बाद जो ससिनाइल कोएंजाइम ए से ससिनिक एसिड बनेगा वहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा और एक GTP बनेगा। उसके बाद जो ससिनिक एसिड से जब मैलिक एसिड बनता है उस समय में अगेन FADH2 बनता है और उसके बाद मैलिक से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में भी NADH2 बनता है। तो की पॉइंट ये है यहाँ पर कि TCA साइकिल और क्रेब साइकिल में सबसे पहला पॉइंट कि कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, प्रोकैरियोट्स में, साइटोसोल में। यहाँ पर 4 बार डिहाइड्रोजिनेशन होता है, 4 बार डिहाइड्रोजिनेशन होता है जिसमें 2 बार यहाँ पे और यहाँ पे होगा, तीसरे बार यहाँ पे और 4th यहाँ पे होगा। तो 4 टाइम्स यहाँ पर हो रहा है क्या, डिहाइड्रोजिनेशन, और 2 बार हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। पहले ही 2 स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन 2 बार हो जाता है। अब जो हाइड्रोजिनेशन हो रहा है वो डिहाइड्रोजिनेशन 3 बार हो रहा है NAD+ का 2 NADH2 और 1 बार हो रहा है FAD+ का 2 FADH2। NADH का 2 बार उधर होगा, 1 बार लास्ट में होगा। और FADH2 कब होगा, जब ससिनिक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, फ्यूमेरिक एसिड में या फिर मैलिक एसिड में। और एक SLP होता है जब ससिनाइल कोएंजाइम ए से ससिनिक एसिड बनता है। जितना भी साइकिल है, एंजाइम है क्रेब साइकिल का, वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एक्सेप्ट एक एंजाइम जिसका नाम है ससिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ससिनेट डिहाइड्रोजिनेज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है, बाकी सारा एंजाइम मैट्रिक्स में होता है। अब जो TCA साइकिल है, इट रिक्वायर्स continuous replenishment of oxaloacetic acid, which is the first member of the cycle, which is a 4 carbon compound. So this TCA cycle, Krebs cycle, requires continuous replacement of this oxaloacetic acid. अब जो ये साइकिल है, इट स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड प्लस वाटर with the help of enzyme that is called citrate synthetase. उसके बाद जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है और यहाँ पर साइट्रिक एसिड बनता है, ये आइसोसाइट्रेट बनता है, इसका अलग ही कहानी है। फिर अल्फा केजीए, फिर ससिनाइल कोएंजाइम ए। ससिनाइल कोएंजाइम ए से ससिनिक एसिड बनने के समय में आपका क्या रिलीज होता है, SLP से GTP। टोटल जो इसका रिएक्शन है वो है पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD+, क्योंकि एक NAD+ इसमें उसका भी ले लेंगे लिंक रिएक्शन का, और FAD+, क्योंकि यहाँ पे 4 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है और एक उसका प्लस 2 वाटर, क्योंकि प्लस ये, और ये बनेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में 3 CO2 रिलीज होता है, एक लिंक रिएक्शन में और 2 क्रेब साइकिल में, और ये सब बनेगा प्रोडक्ट। तो बेसिकली हमको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 टर्न चाहिए क्रेब साइकिल का। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनता है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है और 2 एसिटाइल कोएंजाइम में 2 बार साइकिल चलेगा। 1 पायरुवेट का ऑक्सीडेशन से 3 CO2 रिलीज होता है, 1 CO2 रिलीज होता है लिंक रिएक्शन में और 2 CO2 रिलीज होता है क्रेब साइकिल में। टोटली बात करें तो 3 CO2 रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि एक इधर से 2 इधर से, एंड फॉर 1 ग्लूकोज 6 CO2 रिलीज इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्योंकि 2 बार साइकिल चलता है। तो सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ साइट्रिक एसिड में, अल्फा केजीए, ससिनाइल कोएंजाइम में ससिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में 3 बार यहाँ पे होगा। फर्स्ट के 2 स्टेप और लास्ट के स्टेप में NADH का फॉर्मेशन, यहाँ पे GTP, और इससे मैलिक एसिड में FADH2 का फॉर्मेशन होगा।
फिर है बैलेंस शीट ऑफ द रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 प्रोसेस है। ईएमपी पाथवे दैट इज ग्लाइकोलिसिस, इसके एक टर्न से एक ग्लूकोज के लिए 4 एटीपी बनता है एसएलपी से। 2 NADH2 बनता है कब, जब हमारा PGL से ये बनता है 13 बाई PGA, तो वहाँ पे 2 NADH2 बनता था। तो टोटल हमारे यहाँ 2 एटीपी कंज्यूम भी होता था। तो नेट गेन एटीपी का कितना है 2, प्लस इधर यहाँ पे 6 एटीपी इससे बन गया, तो 2 6 8 एटीपी। लिंक रिएक्शन 2 बार चलाना होगा। लिंक रिएक्शन में कोई एटीपी नहीं बनता है और एक बार में एक NADH2 बनता है, तो 2 बार में 2 NADH2 बनेगा, तो टोटल एटीपी कंज्यूम नहीं होता है, तो 6 एटीपी बनता है। क्रेब साइकिल में हमको 2 साइकिल चलाना पड़ेगा, एक साइकिल में 1 SLP, तो 2 साइकिल में 2 SLP। उसके बाद यहाँ पर 3 NADH2 1 FADH2 बनता है एक साइकिल में, तो 2 साइकिल में 6 NADH2 2 FADH2, एक NADH से 3 ATP और यहाँ पे 2 ATP, तो 18 + 4 ये 22 हो गया, और 22 और यहाँ कोई यूज़ हो नहीं रहा है, तो 22 2 24 ATP, तो टोटल हमारे पास बन गया ऐसे 38 ATP। लेकिन ये 38 ATP उसी ऑर्गेनिज्म में बनेगा जहाँ पर कोई सटल मैकेनिज्म नहीं होगा, जैसे प्रोकैरियोट्स में, तो वहाँ पे हमेशा 38 ATP बनेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन हम लोग में यूकैरियोट्स में जो साइटोसोलिक एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल या फिर ग्लाइकोलिटिक NADH जो पहले बना था, इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ये ट्रांसपोर्टेशन होता है 2 टाइप के सटल में। तो हमारे अंदर 2 टाइप का सटल है, ग्लिसरॉल 6 फॉस्फेट सटल और एक होता है मैलेट अस्पार्टेट सटल। जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल है ये बहुत कॉमन टाइप का है, हर प्लांट में होता है, मसल्स में और नर्व्स में भी होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल। लेकिन जो मैलेट अस्पार्टेट सटल है ये किडनी में, हार्ट में और लिवर में होता है। तो यहाँ पे 38 ATP एज नेट गेन देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ सटल मैकेनिज्म होगा वहाँ पर। तो 2 टाइप का सटल है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल। ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल मोस्ट कॉमन नर्व्स में, मसल्स में और प्लांट में तो कॉमन है, और मैलेट अस्पार्टेट सटल 3 जगह है, किडनी में, हार्ट में और लिवर में। उसके बाद जो क्या कहते हैं, एक एटीपी के अंदर 8.1 किलो कैलोरी का एनर्जी होता है, ठीक है। तो 38 एटीपी जब बनता है तो उसके अंदर 307.8 किलो कैलोरी का एनर्जी उसके अंदर ट्रैप होगा। लेकिन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर 680 किलो कैलोरी एनर्जी होता है। तो 1 ATP हैज़ 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी। 1 ATP हैज़ 8.1 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। तो 38 ATP में इतना और ग्लूकोज में टोटल इतना है। तो एफिशिएंसी जो है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का वो आता है करीब 44.86%, अबाउट 45% से थोड़ा कम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रेस्पिरेटरी कोशिएंट। ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड बाय टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम, इसको बोलते हैं RQ। रेस्पिरेटरी कोशिएंट का मतलब कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। अगर ये प्रोसेस एनारोबिक होगा तो RQ इनफाइनाइट होगा। अगर ये प्रोसेस RQ 0 है, इसका मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, ऑक्सीजन की कमी है और ये सकलेंट प्लांट में मिलता है। RQ <1 है, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है फैट और प्रोटीन का। RQ <1 है, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑर्गेनिक एसिड का। RQ <1 मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। ये कब होता है, कोई सेल अगर भूखा है तो, और यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। इन केस ऑफ मिक्स डाइट एंड जर्मिनेटिंग फैटी सीड, यहाँ पे भी RQ <1 होता है। और RQ 1 से ज़्यादा कब होगा, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ऑर्गेनिक एसिड का या फिर मैच्योर फैटी सीड का। तो 2 चीज़ है, फैटी सीड अगर जर्मिनेट कर रहा है तो उसका RQ <1, अगर फैटी सीड मैच्योरिंग है तो उसका RQ <1। तो लास्टली हम लोग बोल सकते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन 1। Pure protein or fats are never used as respiratory substrate. Now this is very important that pure protein and fats are never used as respiratory substrate. Carbohydrate जब substrate के तरह यूज होगा और completely oxidize होगा तो उसका RQ भी 1 के बराबर हो जाता है। फैट के लिए RQ <1 है, और यहाँ पे जो ट्राईपाल्मिटीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है वहाँ पे RQ होता है 0.7। यहाँ पे 102 CO2 रिलीज होता है और 145 ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। प्रोटीन का RQ 0.9 होता है। कोई एसिड का RQ ज़्यादा होता है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड का 4, मैलिक एसिड का 1.3, ससिनिक एसिड का 1.14।
नेक्स्ट आता है हमारे पास ETS का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि हमारे पास बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें सबसे पहला कॉम्प्लेक्स ये है कॉम्प्लेक्स 1, ये है कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसको बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेस। तो यहाँ पर हमारे पास है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का नाम और उसका कंपोनेंट। ठीक, तो जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसको बोलते हैं हम लोग NADH डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे दो कंपोनेंट होता है, एक होता है FMN और ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है आयरन सल्फर सेंटर पे। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 2, दैट इज़ कॉल्ड ससिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। यही था जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे मिलता है। यहाँ पर भी दो टाइप का हमारे पास दो चीज़ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा FAD और FES। फिर आएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड,